are starting with the different numericals today. And whatever we have done so far under the cost of capital unit, उसी का एक numerical हम लेंगे, which is the comprehensive numerical. In this numerical, we will try to calculate the overall cost of capital of a company, and the different financing decisions of the companies are given in the debenture, equity, the preference shares, irredeemable preference shares. हमें उनकी ओवरऑल वेटेड एवरेज कॉस्ट के बारे में बताना है, यानी उस कंपनी का ओवरऑल कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है उसके बारे में हमें डिस्कस करना है. समझ आया मैं क्या बता रहा हूँ? यस. सर हाँ जी मनीष बोले. सर कुछ सिक्योरिटीज का नेचर ऐसा भी हो सकता है क्या, जैसे मतलब जो मार्केट ट्रेंड को फॉलो ना करता, जैसे मैं समझा नहीं, आप क्या जैसे कहना चाह रहे हैं? मतलब बुलिश मार्केट अभी चल रहा है मतलब, हाँ हाँ. तो उस सिक्योरिटी का नेचर मतलब बेरिश हो ऐसे। सिक्योरिटी नेचर बेरिस, आई डोंट गेट इट, आई मीन किस बेस पे आप बात कर रहे हैं? यस मनीष बोलो. यस सर, मैं ये कह रहा हूँ कि जो बूम पीरियड के अंदर उसके मतलब हम्म. सिक्योरिटीज की प्राइसिंग गिर जाती हो नीचे, और जब रिसेशन का पीरियड चल रहा हो तब वो ऊपर चला जाता हो स्टॉक या शेयर का जो प्राइस है, मार्केट प्राइस। नहीं, यहाँ पर देखिए हम बात क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं द कॉस्ट ऑफ डिफरेंट फंड्स, राइट. हाँ, एक चीज वी कैन रिलेट विद इट, लाइक इफ आई टॉक द कॉस्ट ऑफ इक्विटी. Cost of equity is directly aligned with the market return. I mean, for example, अगर आज के टाइम में cost of equity देखी जाए तो cost of equity आज के टाइम में it is going to be higher. क्या रीज़न है? क्योंकि आज के वक्त जिस तरह से market which is a very bullish in nature, the people those who will invest in a company they will expect and they will prefer more return, right? So this is something one thing we can say about the cost of equity. But in most of the cases, ज़्यादातर केसेस में अगर आप डेट फंड की बात करें, डेट फंड के केस में उल्टा होता है. डेट फंड बेसिकली अगर मार्केट में बेयरिश सिचुएशन है, मार्केट इज इन यू कैन से मार्केट इज इन रिसेशन फॉर एग्जांपल, तो उस केस में जो डेट मनी है उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है डेट फंड की, बिकॉज बिकॉज यू डोंट नो वेदर यू विल गेट योर मनी ऑन टाइम और नॉट, राइट, बिकॉज इट्स अ बेयरिश ट्रेंड. ठीक है. तो यस, cost of capital they are directly indirectly aligned with it, but in case most of the cases they are directly related with the market trend. ठीक है. ठीक है मनीष. यस सर, वो बेसिकली सर मैं यही पूछ रहा था कि बीटा की हाँ. वैल्यू नेगेटिव हो सकती है क्या। बीटा की वैल्यू नेगेटिव तो कभी नहीं होगी. इट कैन बी नेगेटिव नहीं हो सकती, इट कैन बी लेस देन वन, राइट. इट कैन बी लेस देन वन, वन और मोर देन वन. ठीक है. नेगेटिव कभी नहीं होगी. नेगेटिव का मतलब तो है कि वहां पे सिस्टमेटिक रिस्क है ही नहीं, और उल्टा सिस्टमेटिक रिस्क का आपको बेनिफिट ही मिल रहा है हर सिचुएशन में, विच इज नॉट पॉसिबल. ठीक है. ओके सर। ओके फाइन. तो आगे हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कैलकुलेट आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल. Calculate after rest of after tax cost of capital, and there are the number of events are given. First event is 15% preference shares. 15% preference shares sold at par value. Sold at par value of rupees 100. It means the net flow to the company is 100 rupees. Right? This is one information. 15% preference shares sold at par value of rupees 100. Next information in the question is about irredeemable debenture. So I am writing just ID, irredeemable debenture. ID of par value, ID of par value of rupees 1000, sold at a coupon rate, sold at a coupon rate of 15%. At a coupon rate matlab face value, which is 1000. Third information, 8 year, 8%. This is 8%, 8%, 10-year debenture.
8% 10-year debenture of face value rupees 1000, sold at rupees 950, and which is redeemable. ये अच्छा क्वेश्चन है काफी. Redeemable at 10% premium. Redeemable at 10% premium. This is the third type of capital. Fourth information, equity. Equity की information है equity with market price with market price rupees 110, with expected dividend of rupees 11, and a growth of and a growth of 10%, growth rate of 10%. The par value is given. The par value is रुपीज 100. ठीक है, तो ये कुछ इंफॉर्मेशन है. दिस क्वेश्चन वॉज आंस्ड इन बीकॉम एग्जामिनेशन 2015. यानी बीकॉम एग्जामिनेशन में एग्जैक्ट ये क्वेश्चन पूछा गया है. आपको आंसर करना है. वी हैव टू डिटरमिन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ दीज डिफरेंट फंड्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ट्रीट ईच एंड एवरी क्वेश्चन सेपरेटली. इन चार क्वेश्चंस को, इन चार पार्ट्स को आपको अलग अलग करना है, ट्रीटिंग देम एज अ सेपरेट क्वेश्चन. तो कैन वी सोल्व दीज क्वेश्चंस? बताइए. यस सर. ओके, ठीक है. ओके, तो वन बाय वन. ओके, आई वुड लाइक टू नो योर आंसर्स बिकॉज आप अभी तक सब कुछ देख चुके हैं, अच्छे से आपको समझ आ चुका है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू नो द कॉस्ट ऑफ दिस प्रेफरेंस शेयर्स. कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स बता सकते हैं? और ये कैसे प्रेफरेंस शेयर्स है, पहले तो इनका नेचर हमें पता होना जरूरी है. व्हाट इज द नेचर ऑफ दीज प्रेफरेंस शेयर्स? सॉरी, हाँ जी बोलिए. मुझे आवाज नहीं आ रही आप लोगों की. ये सिताबा, पयोधी, मनीष. Sir, redeemable. रिडीमेबल? नो बच्चे, इट इज नॉट रिडीमेबल, इट इज इरिडीमेबल. क्या आपको कुछ बता रखा है टाइम पीरियड इस क्वेश्चन में? फर्स्ट पार्ट में कोई टाइम पीरियड मेंशन नहीं किया गया. सिर्फ मेंशन किया गया है देसी घी बना है नॉर्मल. नॉर्मल बना है क्या? देसी घी बोला था ना, वैसे मुझे वैसे बनाने के लिए फिर बनाने के लिए थोड़ी देर बाद बना रहे. मत बनाने, सारे बनाने को फिर बनाने. ठीक है, मैं क्लास लेगा बाद. तो कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स. सो इन केस ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, देखिए आपको कैसे पहचानना है ये इंपॉर्टेंट है. आप इस क्वेश्चन में देखिए 15% शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स सोल्ड एट पार रुपीज ऑफ 100. कोई इंफॉर्मेशन नहीं है टाइम पीरियड की, तो इसका मतलब हम क्या समझेंगे? दे आर इरिडीमेबल. ठीक है, दे आर इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर. ये वाली बात सबको समझ आए? यस सर. Yes, sir. बताइए. Yes, sir. दे आर इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स. अब इसकी इंफॉर्मेशन हम मेंशन कर सकते हैं. ओके, 15% शेयर सोल्ड एट पार रुपीज ऑफ 100. बताइए. बताइए. फॉर्मूला क्या होगा? Dividend divided by issue price. यस, डिविडेंड डिवाइडेड बाय इशूड प्राइस. एंड व्हाट इज द डिविडेंड? 15 रुपए. भाई 100 पे 15 एंड इशूड प्राइस इज 100 क्योंकि पार वैल्यू पे सोल्ड किया गया है. 15 मल्टीप्लाई 100 तो 15% ही तो आया. ये सुन लो.
Yes, sir. The cost of this preference share is 15%. It was one of the easiest to calculate. आपको करने की जरूरत नहीं थी, आप क्वेश्चन को सीधा देखेंगे, आपके पास 100 रुपीज आ रहे हैं और आप 15 रुपए डिविडेंड हर साल देते हैं, which is 15%. तो obviously the cost of this preference share annually is 15%. Yes or no? Yes, sir. ठीक है, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें. नेक्स्ट हम बात करेंगे सेकेंड थिंग, विच इज irredeemable डिवेंचर. यहाँ पे लिख ही दिया गया है, irredeemable डिवेंचर ऑफ पार वैल्यू ऑफ 1000 सोल्ड एट कूपन रेट ऑफ 15%. राइट, कूपन रेट ऑफ 15%. व्हाट डज इट मीन दिस 15%? अगेन यहाँ पर हम बात करेंगे इसके, हम बात कर रहे हैं कॉस्ट ऑफ irredeemable डिवेंचर्स. फॉर्मूला बताइए, व्हाट इज द फॉर्मूला? Interest into 1 minus tax Very rate good. divided by issue price. वेरी गुड. इंटरेस्ट 1 - t. ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इन केस ऑफ द डिवेंचर वेदर इट इज irredeemable or redeemable, in both cases this benefit of the taxation are given. राइट, टैक्स बेनिफिट जरूर मिलेगा, टैक्स शील्ड आपको जरूर मिलेगी, एंड डिवाइडेड बाय द इशूड प्राइस. सर इसमें इशूड टैक्स प्राइस. रेट गिवन नहीं है ना? टैक्स रेट गिवन नहीं है. मुझे दिखी नहीं. Okay, एक सेकेंड, लेट मी चेक. ओके ओके, हाँ मैंने मेंशन नहीं किया है. इट इज 30%. टैक्स रेट इज मेंशन, 30% इज द टैक्स रेट. 30% is the tax rate. Now, interest. What is the interest? बताइए, इंटरेस्ट वैल्यू क्या है? 150, sir. 150. Right. 15% of 1000 which comes out 150 rupees. 150 रुपये. 1 minus tax. टैक्स रेट इज 30%. तो कंपनी को इफेक्टिवली कितने का पड़ेगा? 70% of this. 70% of this 150, which turns out 105. Yes or no? 105 ही तो आएगा. 15 7 जा, ठीक है, 105 डिवाइडेड बाय इशूड प्राइस. इशूड प्राइस कितना है? 1000 मल्टीप्लाई 100. 1000 रुपीज आपके पास आए और आपका जो नेट जा रहा है आपके पास से, विच इज 105, विच इज 10.5%. यस और नो? Yes, sir. कोई प्रॉब्लम किसी को? एनीवन? No, sir. नो? ओके फाइन. थर्ड केस आप देखें. थर्ड केस आप खुद कैलकुलेट कीजिए. You calculate the third case on your own, which is the cost of redeemable debenture. Cost of redeemable debenture. And let me know answer क्या है. Cost of redeemable debenture. Please calculate. मेन काम यही है आपका रिडीमेबल डिबेंचर के केस में. इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ कैलकुलेशंस. तो प्लीज ट्राई टू कैलकुलेट हाउ वी विल कम अप विद द कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डिबेंचर. हमेशा ध्यान रखना, रिडीमेबल केस में हम इक्वेट करते हैं दो इक्वेशंस को. There are two equations, which is the inflow equals to outflow. याद आ रहा है? Inflow equals to present value of outflow. आप present value जानना चाहते हैं. Now, inflow should be equals to present value of outflow. First of all, we need to decide what is the inflow. कंपनी के पास कितना पैसा है? If you read this question, the third point, it says 8% 10-year debenture of FE, face value of 1000 sold at rupees 950. 950 is the inflow to the company. Yes or no?
ये सबको क्लियर है? 950 इज द इनफ्लो टू द कंपनी. यस क्लास. यस Yes, सर. sir. Yes, sir. ठीक है, 950 is the inflow equals to present value of outflow. What is the outflow to the company? See, outflow कितना है? 8% 10-year debentures. 8% 10-year debentures. It means the interest payment of 8%. Interest payment of 8% of 1000, which is कितना हुआ? कितना हुआ? 80 रुपए. 80 रुपए. 80 रुपीज. यस, 80 रुपीज. लेकिन क्या 80 ही होगा आपको आउटफ्लो? नो, 81 माइनस टी. यस और नो? यस सर. 80 because it's a debenture. डिवेंचर के केस में आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा. therefore it is 81 minus t. For how many time? I mean the time period. ये 80 आपको कितने साल तक मिलेगा? For 10 year. For a period of 10 year. For a period of 10 year. 10 साल तक आपको 80 रुपीज ही मिलते रहेंगे. For 10 year. Plus, at the end of the time period, this debenture is redeemable at 10% premium. यानी 1000 का डिवेंचर आपका कितना पे जाएगा? कितना आप वापस करेंगे? 1100. 1100. Simple. We will pay back this 1000 rupees as 1100 because 10% प्रीमियम पे जा रहा है. 10th ईयर में जा रहा है. 10th ईयर में मैंने आपको कहा था इनकी प्रेजेंट वैल्यू हमें पता होनी चाहिए. प्रेजेंट वैल्यू के लिए हमारे पास एक रेट होना चाहिए, बट द रेट इज नॉट गिवन इन दिस क्वेश्चन. रेट इज नो वेयर इन दिस क्वेश्चन. मैंने सॉल्यूशन का तरीका आपको बताया था. सॉल्यूशन का तरीका या तो इस क्वेश्चन से आप हिंट ले सकते हैं. इट इज रिटन 8% 10 ईयर डिवेंचर, तो आप 8% की हेल्प से भी आप पहले कैलकुलेट कर सकते हैं. You can take 8% as a discount rate, then you can start solving this question. या एक इसका easiest way है आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लें. We can directly use a formula and the formula was this. आपको याद होगा फॉर्मूला. इस केस में फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट. सबसे पहले आई 1 माइनस टी. आई 1 माइनस टी प्लस रिडेम्पशन वैल्यू विच इज आर बी माइनस इशूड प्राइस. इशूड प्राइस कितना था? कितने में दिया? 950 में. इशूड प्राइस डिवाइडेड बाय, दोनों को ऐड कर दो, आर बी प्लस इशूड प्राइस डिवाइडेड बाय 2. दिस इज द फॉर्मूला. याद आ रहा है फॉर्मूला क्लास? यस सर. मुझे लग नहीं रहा आप लोगों को समझ आ रहा है, आप इंटरेस्ट ले रहे हैं इसमें. कुछ ऐसा तो नहीं है कि आपको समझ ही नहीं आ रहा? नहीं सर, आ रहा है समझ. तो मुझे बाकी रिस्पॉन्सेस क्यों नहीं मिल रही? लाइक देयर आर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. हाँ जी बोलो. फॉर्मूले में टाइम पीरियड नहीं आएगा? सॉरी. फॉर्मूले में एन भी तो रहता था, आर बी माइनस इशू प्राइस के डिवाइड. वेट, आर वी माइनस, ओके हाँ न्यूमरेटर में ना. ठीक है ठीक है, ओके थैंक यू. यस, आर वी माइनस इशूड प्राइस डिवाइडेड बाय एन. ये थोड़ा सा फॉर्मूला मुझे भी याद करने में प्रॉब्लम होती है कई बार, बट now we can solve this formula. And please solve this formula now. I 80 1 minus t, which is 70% of 80, plus rb is 1100 minus 950 divided by n 10, and divided by this 1100 plus 950 is 2050 divided by 2015 divided by 2. Please solve this. Please solve this equation. 6.92%. 6.92. 92. Exact 6.92 है? Yes class. Is it exact 6.92? Hello. Second. कैलकुलेट नहीं किया कर रहा है. एक बार आप प्लीज एक बार कैलकुलेट करो एग्जैक्ट है या नहीं है. Because can we take it 7 in case if it is nearby 6.99 or 98? एक बार आप इसे पूरा कैलकुलेट करके बताओ. ये हो जाएगा 8 7 56
56 1100 प्लस ये होगा 150 डिवाइडेड बाय 10 which is 15 15 plus 56 which is 71. Yes, 71 71 divided by 1025. 71 divided by 1025. Okay. Yes, 6.9268. 6.9268. So we can consider 6.93. ठीक है 6.93%. हाँ जी बोले 1100 का अमाउंट कहाँ से आया? सॉरी हेलो 11 1100 अमाउंट कहाँ से आया है ये 1100 राइट यस सर. देखो 1100 बचे क्या है ये आप अगर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें 8% 10 year डिवेंचर ऑफ फ्यूचर फेस वैल्यू ऑफ 1000 सोल्ड एट 950 कंपनी ने तो 950 में बेचा लेकिन जब उसका रिडेम्पशन कंपनी करने लगी तो 10% प्रीमियम पे किया 10% ऑफ दिस फेस वैल्यू 1000 का 10% फेस वैल्यू एक्स्ट्रा क्या होगा 100 रुपीज ओके सर. ओके. तो 100 प्लस 1000 1100 ठीक है 1100 ठीक है this is the 6.93% is the cost of redeemable debenture right now the last phase of this question ये काफी easy है करना ये भी काफी easy है equity with a market price of 110 with expected dividend of rupees 11 and a growth rate of 10% the par value is 100 ये आपको बताना है इक्विटी विद मार्केट प्राइस ऑफ 110 आपको 110 मिला विद एक्सपेक्टेड डिविडेंड ऑफ 11 आप 11 रुपीज हर साल डिविडेंड देते हैं एंड विद ग्रोथ रेट ऑफ 10% तो 11 डिवाइडेड बाय 110 गेस प्लस 11 divided by 110 plus growth rate and the growth rate is 10%. Growth rate is 10%. क्या होगा ये 10 आ जाएगा ये 10 आ जाएगा ये भी 10 है which is 20%. बताइए सर वो 0.10 है ना? हाँ इट इज 0.10 ये दोनों प्लस हो गए तो 20% हो जाएगा यस सर. ठीक है नाउ इफ यू लुक एट दिस क्वेश्चन अगर यहाँ पे आपसे पूछा गया ये तो आपका एक नॉर्मल क्वेश्चन था and we successfully calculated the cost of each and every financing source. In first case, it is 15%, second case 10.5%, third case 6.93%, and the fourth case is 20%. So we all can say the cost of debenture is least because of the tax benefit, mainly because of the tax benefit. The cost of equity as expected is the highest, which is 20% here. तो दोनों केसेस हमें समझ आया अब और कोई इंफॉर्मेशन भी अगर दी हो इस इंफॉर्मेशन के अलावा क्वेश्चन तो यहाँ तक है बट इफ दे आस्क द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल व्हाट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल एक सेकंड वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी अगर आपको निकालना हाउ वुड यू कैलकुलेट दिस वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल If they ask weighted average cost of capital, weighted first of all, we would like to, first of all, we will return all the informations, whatever we have calculated. So in case of irredeemable irredeemable preference shares. Okay, what is the information of irredeemable preference shares? कितना परसेंट आया था? 15%, right? यही आया था ना 15%? यस सर. In case of second option था 10.5%. Third case था 6.93%.
and the fourth case was 20%. Yeah. Now, this case was irredeemable debenture. This case was redeemable debenture, the least cost. This is equity. अगर आपसे एवरेज निकालने के लिए कहा जाए, if they ask you to calculate the averages, see, we are needed to calculate the weighted average cost of capital, यानी जिसका जितना कैपिटल स्ट्रक्चर में वेट है उसके हिसाब से आप उनकी कॉस्ट निकालेंगे. इट्स अंडरस्टैंडेबल. But here no information is given how much is the initial, how much is the irredeemable preference share capital is there in the capital structure of the company. कितना irredeemable डिवेंचर आपने मंगाया था, कितना redeemable डिवेंचर का पैसा मंगाया था, कितना इक्विटी का पैसा मंगाया था. All I can say, no information is given. In this case, एक second. In this case, we have no information. हमारे पास कोई भी information नहीं है कि किसका कितना वेटेज है इन द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपनी. समझ आया आप सबको? यस क्लास? यस ठीक है. तो आप क्या करेंगे, आप हर किसी को सेम वेटेज मानेंगे ना, सेम वेटेज मानेंगे. इफ नो वेटेज इज गिवन, व्हिच इज द सिंपल अरिथमेटिकल, आप इन सबको ऐड कर लेंगे एंड देन डिवाइडेड बाय व्हाट, नंबर ऑफ ऑप्शंस व्हिच आर 4 ऑप्शंस ना. आप इन सबको ऐड कर लो, कितना होगा 6.93 plus 20 plus 10.5 plus 15 and divided by, it is 52.43 divided by 4 options, which comes out 13.11%. 13.11% is the cost of capital of this capital structure. समझ आया क्लास? यस सर. So we can consider it as combined cost of capital. हाँ जी. We can consider it as combined cost of capital. Yes, it is a combined, but साथ में averaging कर रहे हैं ना इसकी, तो that's why we are calling it average cost of capital. ठीक है. लेकिन Okay. ये कहना गलत होगा एक्चुअली कि 13.11 इज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल. आपको कैपिटल स्ट्रक्चर नहीं पता है इस फर्म का. कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब बच्चे क्या होता है, द कॉम्पोजिशन ऑफ द डिफरेंट फंड्स. वी डू नॉट नो द कॉम्पोजिशन ऑफ दीज डिफरेंट फंड्स. डू वी? नो, वी डोंट नो. हमें यही नहीं पता कि इनका कॉम्पोजिशन क्या है. ठीक है. कितना रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है कैपिटल स्ट्रक्चर में, यानी वी डू नॉट द क्वांटम ऑफ दीज फंड्स. इफ यू नो इट then we can solve it, then we can easily solve it. अब क्वेश्चन में ना ये आपको पता भी लग गया, मान लेते हैं कि आपको पता लग गया ये इंफॉर्मेशन भी. this कैपिटल स्ट्रक्चर, आपको कैपिटल स्ट्रक्चर पता लग गया फॉर्म का. आपके पास बैलेंस शीट थी, बैलेंस शीट में आपने देखा, आपको पता लगा द irredeemable preference share in the overall capital structure of the firm constitute 20%. जो टोटल पैसा लिया गया है ना इन चारों सोर्सेस का, वो 20% है. irredeemable debenture is 10%. Redeemable debenture is 30%. And the rest 40% is the equity in this capital structure. पूरा 100 हुआ. ठीक है. Now we are now in a position to calculate the true weighted average cost of capital. क्या करेंगे? सिंपल है. We will multiply this with this. इन सबसे मल्टीप्लाई कर देंगे इनकी वैल्यूज, क्योंकि अब आपको वेटेज पता लग गई है ना. We now know the weightage of these different funds. अब इनकी वेटेज पता लग गई है. Now we can calculate them easily. Okay, now know the weightage. कितना weightage है? 15% multiplied 20%, because this 15% cost of
irredeemable preference shares, they are just 20% in the overall capital structure. तो आप इन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे. Yes, 15% मल्टीप्लाई विथ 20%. कर दो. वैल्यू जो आ रही है उसे लिख दो. 3% आएगी क्या? हाँ जी. 3% आएगी क्या? हाँ 3% होगा ना. Yes 3%. It is the 3%. ठीक है. Multiply. This is just 10%. Now multiply this 6.93 with 30%. And this 20% constitute 40%. ये 8% आ जाएगा डायरेक्ट. ये 8% आया. ये आया 3%. And this one is what? 1.05, right? 1.05. Then this one 6.93 का 30. 6.93 का 30% करो. And which turns out 2 something 2 के आसपास. Can we take 2? 2 ले लें. Yes sir. ठीक है 2 ले लेते हैं इससे. 2 ले लेते हैं 2%. Now add them. We can add these values. Add कर लो 10, 11, 12, 13, 13.05 is the cost of capital. Weighted average cost of capital, which is also known as WACC. Yes, class. बताइए. Clear sir. ठीक है. तो it is easier to calculate them. It is very easy actually. कोई इसमें दिक्कत ही नहीं है. आपको पता लगा ना कि टोटल कैपिटल स्ट्रक्चर का कितना फॉर्म कर रहा है वो. तो वी कैन नाउ नो द 13%. अब देखिए यहाँ पे अलग अलग केसेस भी हो सकते थे. इफ यू लुक एट दिस क्वेश्चन वेरी केयरफुली, द मोस्ट एक्सपेंसिव कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाज इक्विटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल. उसका वेटेज भी सबसे ज्यादा है. लेकिन अगर इन वेटेज को अगर आप चेंज कर दो एंड सबसे ज्यादा वेटेज अगर आप दे दो रिडीमेबल डिवेंचर्स को और सबसे कम वेट दे दो आप किसको, cost of capital of equity, then your total overall weighted average cost of capital will be lesser than this 13.05%. Do we know this? It's pure mathematics. Yes sir. Yes, sir. ठीक है. तो आपको एग्जाम में इसी तरह का क्वेश्चन आएगा. दिस इज द फुल फ्लेजेड क्वेश्चन जहां आपसे पूछा जाएगा कि आप ये सब कीजिए. लास्ट में आपसे ये भी पूछा जाएगा कि आपको ओवरऑल वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना है विद दीज गिवन फंड्स. या तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया, वहां पे फंड्स की इंफॉर्मेशन होगी. 400 करोड़ रुपीज फ्रॉम इक्विटी, 100 करोड़ रुपीज फ्रॉम आर डिवेंचर्स, आई डिवेंचर्स 50 करोड़, फ्रॉम इरेडिमेबल प्रेफरेंस डिवेंचर 200 करोड़. या आपको जैसी इंफॉर्मेशन होगी. सो वी कैन इजिली कैलकुलेट द परसेंटेज. टोटल में से इनका कितना परसेंटेज है, देन वी ऑल जस्ट टू मल्टीप्लाई दैट. और इसके बाद हमारे पास आ जाएगा वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल. ठीक है. Yes sir. Yes, sir. इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आई बिलीव. नो वन. No doubt. ठीक है. गुड. अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं. काफी अच्छा क्वेश्चन है. ये भी एग्जाम में आया हुआ है और इट इज ऑफ बीकॉम प्रोग्राम. बीकॉम प्रोग्राम का क्वेश्चन है. कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है विच इज दिस. वेट वेट वेट. ओके फाइन. ठीक है. ओके गुड. बहुत छोटा सा क्वेश्चन है बट इट इज एक्चुअली वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. इट वाज आस्क्ड इन बीकॉम 2010 एग्जामिनेशन. यानी मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करा रहा हूँ जिससे आपको पता लग पाए कि किस तरह के क्वेश्चंस आपको करने हैं. ठीक है. क्वेश्चंस में बताया गया एक बैलेंस शीट दी गई है विच इज द लायबिलिटी साइड ऑफ कंपनी इज गिवन where the equity share capital 12% debenture 18% term loan and the total is given. यानी टोटल कितना आपने फाइनेंसिंग किया हुआ है ये इंफॉर्मेशन. आगे बताया हुआ है द डिटरमिन द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ द कंपनी. हमें करना है. इट हैड बीन पेइंग डिविडेंड एट अ कंसिस्टेंट रेट ऑफ 20% पर एनम. एक कंपनी जो 20% डिविडेंड हर साल पे कर रही है. 20% डिविडेंड. What does it mean? No growth dividend. Can we say this? No growth dividend model. याद आ रहा है?
बताओ। मुझे आप लोग पता नहीं इंटरेस्टिंग ही नहीं लग रहे पढ़ने में। ठीक है, आई एम नॉट गोइंग टू डू दिस। मुझे लगता है कि ठीक है, आप लोग खुद ही इन क्वेश्चंस को कीजिए। आप पे आते हैं नहीं आते हैं, ठीक, आप लोग खुद करो ये। एंड मैं नेक्स्ट क्लास से फिर नेक्स्ट चैप्टर ही स्टार्ट कराऊंगा। और आई जस्ट शेयर ऑल दीज क्वेश्चंस विद यू। और आप कीजिए ना कीजिए, आपकी इच्छा है पूरी तरह से। तो रिताबा, आप अटेंडेंस ले लीजिए। यस रिताबा, is she there in the class? नो। ठीक है, अटेंडेंस भी आप रहने दीजिए फिर आज।